I would now call upon Mr. Vinayak Ramale, General Secretary and SC/ST Employees Welfare Association for his welcome speech. Thank you, Rajendra sir. Jai Bhim, one and all. I would like to introduce myself first. I am Vinayak Ramale. Meaning of my name is Buddha, or the priest of Buddhist teacher. And I am General Secretary of Ship India SC/ST Welfare Association. On behalf of Shipping Corporation of India, Ship India SC/ST Welfare Association, Shipping Corporation of India Officer Association, SCI/SU, Lokadhikari Samiti, I would like to welcome all of you. I would like to welcome Dr. Sushma Andre, Shivsena Upaneta. Thank you, ma'am, for coming here and giving your valuable time to grace this occasion. I would like to thank and welcome CMD sir, Captain V.K. Tyagi sir, and Shri Atul Ubale sir, Director BNT and Director P&A Additional Charge. Without your valuable support and your guidance, this function would not be possible, sir. Thank you. I would like to welcome Shri Acharya sir, Director Finance, Shri Vikram Dingle sir, Director TNOS, and Bharat Vankade sir, President SC/ST Union Mantralaya, for coming here and attending this function. Thank you. I now take this opportunity to briefly introduce our Shipping Corporation of India. We, as a SCIL, serving our nation since 1961. We started with the 19 vessels. Now we have only 59 vessels owned, and we are also managing government department vessels and other PSU vessels. We are sending our manpowers and we are managing them. We also have our land parcel of 45 acres in the heart of Mumbai city, that is in Powai, where we train cadets, which in future becomes master mariner and chief engineers who take the responsibility and take care of the shipping industry. On this auspicious event, I would like to say a few words about our pillar, Dr. Babasaheb Ambedkar, a great visionary, reformist, jurist, economist, father of Indian Constitution. Talking about his vision, one of it is equal opportunity. When I am talking about equal opportunity, that is not restricted only to SC/ST OBC. It means equal opportunity to for all. It means gender neutrality. That means giving opportunity to both the genders, like equal opportunity in education, equal opportunity in jobs. So we, being PSUs, we provide equal opportunity to everyone, with no respect to caste, with no respect to gender. We follow what it is given by the vision of Dr. Babasaheb Ambedkar. And that is how we have privileged, we have blessed to work under the guidance, under the leadership of our ex-CMD, and the only female CMD in the history of SCI. And talking the other vision of the Babasaheb, if we are talking about, it means Navy Shipping Corporation of India. And when we are talking about Shipping Corporation, it comes to the shipping. Shipping means sailing, and without sailor, it cannot be we cannot run ships. Now, if a sailor is a good sailor, that means he has the good grip on the navigation. And when it gets on, when we talk about navigation, very few of us might know that the policy of navigation is clearly cited by the Babasaheb Ambedkar. It was Dr. Babasaheb Ambedkar who has given a good policy and who has. And with this, I would like to end my welcome speech. And Jai SCI, Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Vinayji. I would now request our CMD, Captain V.K. Tyagi, to come up on the stage and say a few words. Good afternoon, everyone. First, let's welcome our guest today, Dr. Sushma Sri Vankade. In fact, our team is preparing for this day, this function,
since last good 15 days. 14th of April, that was a Friday, we celebrated actual birthday of our Bharat Ratna Ambedkar Sahib. And then this function was organized so that we all can participate in big way and we can get benefit from our eminent guests and speakers basically, and we are gathered for that. Dr. Ambedkar Sahib, he is one of the main pillars for our society. We know how much, because of his philosophies, because of his policies, how many of us has got benefited. And many of our colleagues today who are sitting in this air-conditioned hall is a result of his policies. And it has immensely helped our society, our country, and really officers, rather persons from very socially backward areas, they have been uplifted and they are today holding high ranks, high positions in various companies, CPSCs, Government of India. So this was the vision and this was the really objective of Dr. Ambedkar Sahib, which has been fulfilled, and this process is still on. My only submission and the thought process here is, whatever is achieved. There are still so many areas, especially if you go to village and all. अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे जो साथी हैं हमारे समाज के जिन्हें अभी तक ये बेनिफिट नहीं पहुंचे हैं। तो हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बेनिफिट उन तक भी पहुंचे और वो भी एक दिन जैसे हम लोग यहाँ अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं उन्हें सब ये बेनिफिट मिले। डॉक्टर अम्बेडकर साहब, उनका एक ये मेन एरिया था जो अच्छी तरह से प्रोग्रेस हुआ है। राहुल ने भी बताया, उनका केवल उसी रूप में हम अम्बेडकर साहब को देखते हैं, पर उनका जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इस सोसाइटी के लिए था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरियस पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रिवर नेविगेशंस। आज की डेट में जो लास्ट बजट में भी था, कोस्टल शिपिंग की बात हो रही थी। ये कोस्टल शिपिंग की पॉलिसी और जो उनका जो विजन था 1940s में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ऑलरेडी ये डिफाइन कर चुके थे। तो मैडम, हम शिपिंग कंपनी में जो जहाज चलाते हैं और जो शिपिंग की बात करते हैं, रिवर नेविगेशन या ओशियन, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाबा अम्बेडकर साहब की ही देन है। मैं बहुत ज़्यादा समाज नहीं लूँगा क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर सुषमा का, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि हम उनके ज्ञान से, उनके विचारों से बहुत कुछ सीखें आज। So with these words, once again I thank you Dr. Sushma Sri Wankare Sahab. Welcome to SCI and welcome to this talk. Thank you. Thank you so much, sir. Our next speaker will be Dr. Sushma Adare, and she knows no introduction. Dr. Sushma Adare is a leader, Shiv Sena. She has done her PhD in politics of Indian Constitution Review Committee. She had held several important positions in college. She has worked as an editor, Lok Nayak Ambedkar newspaper, and she is an active social worker. I would now request ma'am to kindly come on the stage and say a few words. Honorable eyes and all respected guests. मंच पर विराजित कैप्टन बीके त्यागी साहब, काफ़ी सालों के बाद मिले हुए मंत्रालयीन हमारे सहकारी भाई भरत वानखेड़े जी, यहाँ निमंत्रित करने वाले विधायक राहुल जी और उनकी पूरी टीम, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 132वें जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पधारे आप सभी महानुभाव, हमारे साथ आई हुई शिवसेना डेप्यूटी लीडर तथा स्पीकर संजना ताई घाड़ी, बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पहले भी
सुन चुके हैं अलग अलग विषयों पर। और आज की दिक्कत ये है कि एक कैमरा लगा हुआ है जो अराउंड द वर्ल्ड लोग सुन रहे हैं, और जो SCI के अलग अलग ऑफिसेस से जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, वह भी सुन रहे हैं। तो पहले यहाँ का जो क्राउड होगा क्या होगा उसका इतना कुछ आइडिया नहीं था। आपल्याला काय जायचे आणि ठोकून यायचे। अभी यहाँ आने के बाद अब दिक्कत यह हो गई कि अरे यार, एक तो ये अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द कंट्री लोग हैं, और अलग अलग भाषा में बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति भांति जानने वाले लोग हैं, और आप सबके बीच मुझे बाबा साहब का विचार रखना है। तो मैं बाबा साहब के किस एंगल को आपके सामने रखूं जो कि आप सबको जोड़ के आगे चलेगा, जो कि आप सबको, कि मान लीजिए कि हम जब रंगोली बनाते हैं तो एक 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 डॉट ऐसे डालते जाते हैं, और जब एक एक डॉट को एक को दूसरे से हम एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते जाते हैं तो एक बड़ी सुंदर सी रंगोली उससे बन जाती है। तो भारत की एक बड़ी सुंदर सी रंगोली बननी चाहिए असल में, और यही मंशा विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी थी। किंतु बाबा साहब के बारे में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, काफ़ी मिसलीडिंग, काफ़ी कुछ गलत तरह के रूमर्स भी फैलाए गए। तो उन सब के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ूँगी। होता क्या है कि जैसे जैसे अप्रैल महीना आने का शुरुआत हो जाती है तो मार्च एंडिंग में कहीं कहीं बातें चलती रहती हैं, सरकारी ऑफिसेस में, बाहर जो कमर्शियल एरिया होता है उनमें, कहीं कहीं तो ऐसे गाँवों में भी बातें चलती रहती है। और एक दूसरे से बात करते समय, जो कि एक दूसरे के कलीग होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करते हैं, बात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, एक डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, किंतु वो बात करते समय कहते हैं अरे वो आप लोगों का फेस्टिवल आ रहा है ना, वो कुछ है ना, वो अप्रैल में आप लोगों का फेस्टिवल है। तो ये आप लोगों का फेस्टिवल माने क्या है? तो समझ में नहीं आता। इफ गांधी इज नेशनल लीडर, इफ पटेल इज नेशनल लीडर, इफ तिलक इज नेशनल लीडर, देन ये एक तरह से आइसोलेशन में, एक तरह से एक्सक्लूडेड करना, ये क्या बात हो गई और ये कहाँ से शुरुआत हो गई? तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार लिखने बोलने वाले लोग भी हैं, जिन्हें विचारक या दार्शनिक कहा जाता है, या कुछ ऐसे लोग भी जो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखा करते हैं, लेकिन आपल्याकडे काही भीमगीत वगैरह लिहिणारे माणसं। तो ऐसे कुछ लोग जिन्होंने बाबा साहब को एज ए लीडर एक्सेप्ट करने के बजाय बाबा साहब को एज अ गॉड एक्सेप्ट किया है, जो बाबा साहब को भगवान बना बैठे हैं। माफ कीजिए, मैं बाबा साहब को भगवान नहीं मानती हूँ। और क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि बाबा साहब खुद कहते हैं किसी भी महापुरुष की जब मृत्यु होती है तो वो दो तरह से मृत्यु होती है। एक नैसर्गिक मृत्यु है, नेचुरल डेथ है, और दूसरी जब उसके फॉलोअर्स उसे भगवान बना बैठेंगे और फॉलोअर्स खुद भक्त बन जाएंगे। क्योंकि भक्त एनालिसिस नहीं कर पाते, वो एनालाइज नहीं करते हैं, उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं, उसे सवाल नहीं पूछते हैं, कोई फीडबैक नहीं देने की कोई जवाबदेही नहीं होती, आंसरेबल ही नहीं रहते। बस भक्त क्या करेंगे? भक्त एक माला पहनाएंगे, भक्त एक नारियल फोड़ेंगे, भक्त ऐसे माथा टेकेंगे और मन्नतें मांगते रह जाएंगे, भगवान मुझे नौकरी दे दो, भगवान मुझे छोकरी दे दो, भगवान मुझे घर दे दो, फ्लैट दे दो, प्रमोशन दे दो, बस दे दो दे दो दे दो। लेकिन मुझे क्या देना है? तो मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं बन रही, बस डिमांड किए जा रहा हूँ। ड्यूटीज कहाँ आ रही है? ड्यूटी एंड डिमांड्स, दीज आर द बोथ साइड ऑफ वन कॉइन। तो ये जरा समझ लेने की बात थी। बाबा साहब के बारे में दिक्कत क्या हुई कि कुछ हमारे मराठी में गीत है सर, शायद आप मराठी समझने में का थोड़ा सा अनेबल होंगे, लेकिन अब महाराष्ट्र में इतने सालों से हैं तो थोड़ा समझेंगे ही। जैसे हम लोग
मोदी जी की हिंदी सब समझते ही है, तो आप लोग भी हमारी मराठी समझेंगे ही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचेंगे ना सर। सोचने में कहाँ पैसे पड़ते हैं, सपने देखने में कहाँ पैसे पड़ते हैं। और अगर कुछ बड़ा लीडर बनना ही है तो चलो यार मोदी की उनकी पोजीशन तक का पहुंचेंगे ना, वहां तक जाएंगे। पैसे थोड़ी पड़ रहे, सपने देखने तो बड़े देखने हैं। अब हुआ क्या ना सर कि हमारे मराठी में जो गीत आए, तो इस गीत में एक गीत बहुत कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, सुना बहुत बार होगा। गीत क्या है? राजा 9 कोटीचा राजा, राजा 9 कोटीचा राजा. खूप वेळा ऐकलं असेल प्रल्हाद शिंदे, आनंद शिंदे यांच्या गायनातनं, आपण जयंतीला नेहमीसाठी ऐकले. अब ये जो गाना है जो कहता है कि राजा 9 करोड़ का राजा, किंग ऑफ 9 करोड़ पीपल, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बाबा साहब को इन्होंने 9 करोड़ का राजा कहां से बना दिया? कैसे हो गए बाबा साहब 9 करोड़ के राजा? बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान लिखा था तब इस देश की जो कुल आबादी थी वो 65 से 70 करोड़ की आबादी थी. अगर आबादी 65 से 70 करोड़ की थी और वह जो संविधान लिखा वो किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं लिखा था, वह संविधान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समूचे भारतवर्ष के लिए लिखा था. तो ये कहां से बात आ गई कि अचानक से 9 करोड़ की बात कहां से आ गई? ये फिगर किसने निकाली 9 करोड़ की? अगर 65 करोड़ का संविधान लिखा है और 65 करोड़ के वो लीडर है तो 9 करोड़ का राजा कहां से हो गया? एक तरह से बाबा साहब को आइसोलेट करने की जो कोशिश थी, जो बहुत क्रीम का क्लास से पेनिट्रेट पर्कुलेट होते होते नीचे आ रही थी, निचले स्तर के जो लोग हैं वो इतना नहीं सोचेंगे ना. वो इतना सोचेंगे तो वो मोदी जी की कुर्सी पर बैठेंगे. वो बेचारे इतना नहीं सोचते हैं. जैसे कि एक वेस्टर्न थिंकर है डार्लिन शुम्पीटर. तो डार्लिन शुम्पीटर कहते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स की एक थ्योरी बताई है, उसे एलाइट थ्योरी कहते हैं, राजकारणाचा अभिजनवादी सिद्धांत. अब अभिजनवाद यानी कोई जातिवाद नहीं. तो वो कहते हैं कि एक पिरामिड होता है राजनीति का, और पिरामिड में ना पहला एक बेस होता है, वो एक 75 से 80% का होता है. फिर उस पर एक बेस होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 17% का होता है, और उसके ऊपर एक 2% लोग होते हैं. अब जरा समझ लीजिए, 75 से 80% वाला एक बड़ा तबका, उसके ऊपर एक तबका है जो कम से कम 15 से 17% का है. ढाल शुम्पीटर कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी राज करने के लिए ही पैदा होते हैं. कुछ लोग होते हैं वो जन्म से ही दूसरों पर राज करने के लिए, सत्ता करने के लिए ही पैदा होते हैं. और ऐसे कितने होते हैं? तो कहते हैं 15 से 17% होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का राज सहने के लिए ही पैदा होते हैं. ऐसे कितने होते हैं? तो 15 से 17% होते हैं. और फिर डार्लिन शुम्पीटर कहते हैं 2% लोग हैं, ना वो सत्ता सहते हैं ना वो राज करते हैं. तो वो क्या करते हैं? तो वो ये दो तबके हैं, जो निचला हिस्सा है 75 से 80% का और जो ऊपर का जो हिस्सा है 15 से 17% का, इन दोनों हिस्सों को वो प्रभावित करते हैं. वो होते हैं यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, माने अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा. ये थ्योरी है. आई एम नॉट सेइंग ये, आई एम सेइंग जस्ट बिहाफ डार्लिन शुम्पीटर. बहुत बड़े थिंकर साहब थे जिन्होंने यह बात रखी थी. अब देखिए, ये जो ऊपर के जो 2% होते हैं ना, ये तय करते हैं कि 17% में किसे बिठाना है. ये जिसे चाहे बिठा सकते हैं, जिसे चाहे बना सकते हैं और जिसे चाहे बिगाड़ सकते हैं. इन लोगों ने तय किया, वही बात नीचे पेनिट्रेट और पर्कुलेट होते जाती है. वो अगर कहेंगे कि ये नेशनल लीडर है तो वो नेशनल लीडर बन सकता है. ये ग्लोबल लीडर है तो ग्लोबल लीडर वो बन सकता है, बिकॉज वो प्रभावित करते हैं हर एक क्षेत्र को, हर एक सेक्टर को. कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, हर एक सेक्टर को वो प्रभावित करते हैं और वो परसेप्शन सेट करते हैं.
आज की तारीख में सारा खेल परसेप्शन का है भैया, बस परसेप्शन सेट किए जाते हैं। तो वो एक परसेप्शन सेट करते हैं कि देखिए ये जो है ना ये ग्लोबल लीडर है, तो कभी कभी वो परसेप्शन सेट करते हैं ये जो है ना ये लोकल लीडर है। समझ लीजिए बात क्या चल रही है। अब इन लोगों को बाबा साहब के ग्लोबल लीडर होने से जिनको डर लग रहा था, उन्होंने एक परसेप्शन सेट कर दिया और उसे पेनिट्रेट और कैलकुलेट करना शुरुआत कर दिया कि बाबा साहब का क्या ना, बाबा साहब मसीहा है दलितों के, बाबा साहब राजा थे दलितों के, बाबा साहब भगवान थे दलितों के, बाबा साहब उद्धारक थे दलितों के, बाबा साहब ने खूब लड़ाई लड़ी दलितों की। वो राजा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो मसीहा कहते हैं, वो सब कुछ कहते हैं, लेकिन बाद में जो शब्द लगाते, कंजक्शन लगाते, वो दलितों के। बाबा साहब एंटायर द कंट्री नहीं कह रहे हैं वो कि समूचे देश के वह नेता है, ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे हैं? बिकॉज दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब नेशनल पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम की राजनीति में आए। मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी संजीदगी से और बहुत सोच विचार करके मैं राजनीति पढ़ाती हूँ, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो यूपीएससी के एकेडमिक ईयर में जो थेरीज होती है, उस थेरीज के आधार पर यह बोल रही हूँ। मैं कोई भी भावनिक इमोशनल बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सोच विचार की बात कर रही हूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी मैं कोई राजनीति भी यहाँ नहीं लानी चाहती, मैं सिर्फ थ्योरी की बात कहूंगी। तो जिन लोगों को डर था कि बाबा साहब समूचे समुदाय के, समूचे भारतवर्ष के नेता हो सकते हैं, उन्होंने यह तय किया कि बस एक्सक्लूड करना है। इंक्लूजन की मूवमेंट चलाने वाले इंसान को ही एक्सक्लूड करने की कोशिश यहाँ पर की गई और उनके इस परसेप्शन के खेल में यहाँ का जो बहुत निचला तबका था वह ट्रैप में फंस गया और वो भी यही कहने लगा, राजा 9 कोटीचा राजा। आपल्याला असंच वाटलं की आहे बाबा 9 कोटीचा राजा, खेळ झाला। आता जरा पुढे, आणि हे जर झालं असतं तर काय झालं असतं माहितीये का? जे आता जे तुम्ही रिपब्लिकनचं राजकारण बघता, म्हणजे मला असं सांगितलं की आठवले साहेबांकडे येऊन गेले वगैरे, हे रिपब्लिकनचं राजकारण कदाचित मेन स्ट्रीमचं राजकारण झालं असतं। म्हणजे अगर वह मेन स्ट्रीम के लीडर होते हैं तो शायद जो उन्होंने बनाई हुई पार्टी थी वो पार्टी मेन स्ट्रीम की राजनीति करने वाली मेन स्ट्रीम नेशनल लेवल की पार्टी बन जाती, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि परसेप्शन ही उसी तरह से सेट किया गया था। चलिए मैं आपको हिला कर रख देने वाली और कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगी। हालांकि मैं फिर एक बार कहूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें बहुत ही साइंटिफिक तौर पर रखने की कोशिश कर रही हूँ। फिर थोड़ा आगे आते हैं, फिर बाबा साहब के बारे में और गाने लिखने वालों ने गलत सलत लिख लिया। क्या लिखा? और एक गीत आया और कह दिया कि जरी झाला बैरिस्टर तरी पडला ना विसर, भीमा आवडी न बाई खई कांदा न भाकर। मेरी समझ में ही नहीं आया क्या कहते हैं हमारी मराठी में कि यदि वो बैरिस्टर भी हुआ है तो फिर भी वो भूला नहीं है कि वो कहाँ से आया था और आज भी वो रूखी सूखी रोटी खाता है बैरिस्टर बनने के बाद। कहां से परसेप्शन क्रिएट किया गया? एक तरह से हमें यह बताने की कोशिश की गई कि तुम कितने भी पलो बढ़ो, कितने भी बड़े अफसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम पुराने चिथड़ों में ही रहो और रूखी सूखी खाते रहो। तुम्हें अच्छा हेल्दी फूड खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे बाबा साहब ने तो ऐसा ही खाया था। देखिए परसेप्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए आज की तारीख में सर हमने तो पहली बार ये सैलरी के आंकड़े सुने हैं कि बाप रे आपके एससीआई में इतने बड़ी बड़ी सैलरीज दी जाती है। हम तो छोटे मोटे प्रोफेसर लोग हैं सर, तो प्रोफेसर में कितनी सैलरी होती है सर? 1.5 से 2 लाख। बहुत हो गया सर, 1.5 लाख यानी झूम के नाचेगा वो 1.5 लाख में। तो इतनी सैलरी वाले जो लोग होते हैं ना सर, जब उनके बच्चों को पुणे मुंबई में रखना होता है तो पढ़ने के लिए यूपीएससी एमपीएससी के लिए हमारे पास अराउंड एंटायर कंट्री पुणे में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, यूपीएससी के खास कर आते हैं। तो कितना सोचते हैं 1.5 लाख सैलरी वाले लोग भी कि अरे उस बच्चे की मेस कितनी होगी, उसको फीस कितनी होगी, रहने का बंदोबस्त कैसे होगा, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। 1.5 लाख सैलरी होने के बावजूद उस
बाबा साहब 19वीं सदी है और उस वक्त बाबा साहब के पिता बाबा साहब को पूना मुंबई में नहीं फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं पढ़ाई के लिए। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। अब जिस इंसान ने अपने बच्चे को फॉरेन कंट्री में पढ़ने लिखने के लिए भेजा है वो भला रूखी सूखी रोटी खाएगा? किसने बताया यह? कितने गलत परसेप्शन। फिर कहा कि असं झालं की म्हणे सत्काराला काहीच नव्हतं तर रमाई सत्कारात एक जरी पटकाच दिसून गेल्या। क्यों? बाबा साहब की छवि कुछ अलग तरीके से रखने की कोशिश की जाती है। चलिए छोड़िए जरा थोड़ा और अलग थोड़ा आगे जाते हैं और एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि बाबा साहब सिर्फ एक वर्ग के लिए है, सिर्फ एक वर्ग के लिए ही उन्होंने काम किया है। और हमें तो कलर की राजनीति बड़ी होती है, रंगों की राजनीति तो इतनी बढ़ती जा रही है कि हर एक रंग जैसे बटोर लिया है मानो, हर एक रंग हर एक ने। लेकिन मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि मान लीजिए कि हिंदू धर्म की एक फिलॉसफी कहती है कि आप और मैं जो बने हैं वो पंच महाभूतों से बने हैं। हम पंच महाभूतों से बने हैं और हमारा पूरा यहाँ का जीवित कार्य खत्म होने के बाद हम उसी पंच महाभूत में समाएंगे। क्या है वो पंच महाभूत? तो अग्नि है, वायु है, तपन है, सूरज है, पानी है ना। अब जरा पंच महाभूत की जरा रंगों की राजनीति को जरा समझ लेते हैं कि मान लीजिए अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी के दिन है लेकिन 2 महीने के बाद वर्षा शुरू हो जाएगी। जैसे वर्षा शुरू हो जाएगी तो ये सारी धरती हरी भरी हो जाएगी। क्या धरती कभी ऐसे कहती है कि भाई मेरा रंग तो हरा है तो सिर्फ मुसलमान भाई यहाँ पर है, बाकी के किधर भी जाए हमको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए मैं हूँ। ये आकाश, ये समंदर आप लोगों की समंदर से गहरी दोस्ती है। सर कितने अलग अलग जाति धर्म के लोग शिप में काम करते होंगे। क्या समंदर कभी ऐसे कहता है कि भाई मेरा रंग तो नीला है तो सिर्फ बौद्धों की ही रखवाली मैं करूंगा, सिर्फ बौद्धों की ही हिफाजत करूंगा, बाकी किधर भी जाए? नहीं कहता ना सर समंदर। सूरज अगन डूबता या उगता, रंग साफरन भगवान। सूरज कब कहता है सर कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए उगूंगा और सिर्फ हिंदुओं के लिए डूबूंगा? वो तो सबके लिए उगता है, सबके लिए डूबता है। अगर जिस पंच महाभूतों से यह शरीर बना है वह पंच महाभूत कभी रंगों की राजनीति नहीं करते हैं तो आपके और मेरे जैसे जो शुद्ध जीव है, जो 130 करोड़ की आबादी को भटकाने वाले, जो परसेप्शन करने वाले लोग हैं, ये लोगों ने कहां से रंगों की राजनीति लाई? समझ में नहीं आया हमें। और यही राजनीति फिर बाबा साहब के साथ जी करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब जब काम कर रहे हैं तो बाबा साहब को एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बाबा साहब को रखने की कोशिश की जाती है। इसके लिए जिम्मेदार बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले भी हैं, क्योंकि जिनको राजनीति करनी है उन्हें ऐसे लगता है कि हमारी मोनोपोली जाने नहीं चाहिए, हमारी मोनोपोली है तो किसी ने उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट बाबा साहब इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ एनी कास्ट एंड कम्युनिटी। बाबा साहब इज अ ग्लोबल लीडर एंड वी हैव टू शो हिम एज लाइक अ ग्लोबल लीडर। बाबा साहब ने जो काम किया वो किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं किया। मान लीजिए कि हम जरा उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक वक्त था कि बाबा साहब वहां पर जाते हैं और गांधी जी भी गए हैं और वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि भाई हमने तो यहाँ 99 चेयर लगाई है और लोग तो 100 आए हैं, वी आर वेरी वेल डिसिप्लिन पीपल, और 99 कुर्सियां लगाई है और एक बंदा ज्यादा है। कौन है? तो भारत से 2 लोग हैं। कौन है? गांधी है और अम्बेडकर है। तो क्या करेंगे? अब किसको बोलने के लिए बोलेंगे? तो बाबा साहब कह रहे हैं सी आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरी डिफरेंट क्लास। मैं वहां के बड़े ही उपेक्षित वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ तो मुझे उनकी बात रखनी ही होगी। उनकी बात कौन रखेगा? बट वी डोंट नो, हमें पता नहीं है। और वहां से फरमान निकलता है, आज की तारीख में ईमेल है, व्हाट्सएप है और टेलीग्राम सब कुछ है।
उस तारीख में तार भिजवाया किया करते थे। तो वहां से एक तार निकलता है और तार ऐसे निकलता है कि बाबा साहब क्या आपके लीडर हैं? तो भारत के हर एक तबके से लोग तार भेजते हैं ब्रिटेन में, हर एक तबके से, और हर एक किसान, मजदूर, कोई भी जो छोटे मोटे काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, वह हर कोई बताया जा रहा है, अरे देखो देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे बाबा साहब बात करने वाले हैं, बाबा साहब हमारे नेता है, हमें बताना पड़ेगा, चलो चलो तार घर में चलो, तार करना है, तार घर में चलो, तार करना है। और हर एक तबके से जो भी दबे कुचले लोग हैं वो बाबा साहब के लिए तार करते हैं। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब की जन्मभूमि, कर्मभूमि वैसे तो महाराष्ट्र रह चुकी है, किंतु बाबा साहब के लिए सबसे ज्यादा तार जो गए वो पंजाब से गए, और भेजने वाली कम्युनिटी में सबसे ज्यादा करते वो सिख थे। कुछ तार तो इतने इमोशनल लिखे हुए थे। अगर आप कभी पूना में आए तो पूना में जयकर लाइब्रेरी है, जयकर लाइब्रेरी में आज भी आप देख सकते हैं, उसके सारे एविडेंस और रेफरेंस है कि एक तार अपने खून से लिखा गया है, पंजाब से लिखा गया है, और कहते हैं पंजाब के तार लिखने वाले ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कह रहे हैं हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, हमारी तरफ से बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को है, क्योंकि उनका और हमारा खून का रिश्ता है। अगर यकीन न आए तो आप हमारा खून चेक कर लीजिए, हमने अपने खून से दस्तखत कर भिजवाए हैं। बाबा साहब के लिए इतने अलग अलग जगहों से लोगों ने इतना अपनापन जताना, फिर भी लोग कहते हैं बाबा साहब ने औरों के लिए क्या किया। हम आपको और एक बात बतला दें, बड़े अनसुने किस्से। अब लोग पुतलों की राजनीति बड़ी करते हैं, यहाँ पुतला चाहिए, वहाँ पुतला चाहिए, हमने इतना बड़ा पुतला कर दिया, ये बड़ा सा पुतला, इतना बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा पुतला। और क्या करेंगे? पुतले खड़े करके क्या करेंगे? जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर पावर्टी है, जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, सिर्फ पुतले बिठा कर क्या करोगे? ये नाम हमको देना है, इस रास्ते को यह नाम देना है, इस चौक को यह नाम देना है। अरे भाई, रास्तों को ऐसे नेताओं के नाम देने के बजाय महापुरुषों के रास्तों पर चलना ज्यादा लाजमी है, कुछ ज्यादा सही होगा। अब जब ये पुतलों की राजनीति हो रही है, बाबा साहब इकलौते ऐसे लीडर है कि जिनका पुतला उनकी निर्वाण के पश्चात नहीं बल्कि उनके जीवित रहते बना था, और बनाने वाली सिटी थी महाराष्ट्र की कोल्हापुर। और किसने बनाया पुतला? तो आप जैसे अगर किसी के जाति के एंटेने वगैरह लगे होंगे तो समझ ले कि पुतला बाबा साहब के किसी रिश्तेदार ने नहीं बनाया था। बाबा साहब के जीवित रहते बाबा साहब का पहला स्टैचू कोल्हापुर के बिंदु चौक में मराठा कम्युनिटी के माधवराव बागुल और विमलताई बागुल इन लोगों ने बनाया था। माधवराव बागुल और विमलताई बागुल, इनको लगता है कि अरे बाबा साहब हमारे लीडर हैं। हर एक महिला को लगता है कि बाबा साहब हमारे लीडर है। उसका और एक उदाहरण देना चाहेंगे। हिंदू कोड बिल की बात आ गई, कॉमन सिविल कोड की बात आ गई, समान नागरिक कायदा। कॉमन सिविल कोड के लेकर हमें अब भी कुछ लोगों के बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे लोगों की कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्चुअली इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तैयार हुए विज्ञानी लोग हैं, ये बस कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड का जमाना है, तो पढ़ते नहीं है और स्टडी नहीं करते हैं और पता नहीं है। तो जब कभी रिजर्वेशन की बात आती है, जब कोई चीज घटती है तो यकाएक भूल जाते हैं, अरे ये पहले समान नागरिक कायदा आनंद का करा, वो कॉमन सिविल कोड लाना पड़ेगा, उसके सिवा ये रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। अरे भैया, रिजर्वेशन का और कॉमन सिविल कोड का दूर दूर कोई लेन देन है ही नहीं। कॉमन सिविल कोड एक अलग बात है, रिजर्वेशन एक अलग बात है। कॉमन सिविल कोड यह सिर्फ और सिर्फ भारत वर्ष की महिलाओं के सम्मान में आया था,
जो आज की तारीख में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 आर्टिकल 44 में लोकेट किया गया है। क्या है कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड सिर्फ चार बातों पर निर्भर होता है। हम गांव देहातों में बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी काय म्हणतात त्याला आपल्या ग्रामीण शैलीत आमच्या ठेक्यात आम्ही त्यांना समजावून सांगायचा प्रयत्न करतो की चार मुद्द्यांवर ते कॉमन सिविल कोड येतं। एक, पहली पत्नी के जीवित रहते कोई भी पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर पाएगा, पहला नियम है। तो हम मराठी में कैसे समझाते पता है? गांव खेड़े में जाकर कि राधिका जोपर्यंत घरात आहे शनायाला एंट्री मिळणार नाही। मेरा मकसद क्या है कि मेरे गांव की, मेरे देहातों की जो मेरी बहनें हैं उनको कानून समझना चाहिए, एक एक आर्टिकल समझना चाहिए। तो उनकी भाषा में बड़ा ही जितना हो सके उनकी फोक लैंग्वेज में मैं उनको समझाने की कोशिश करूं। अब उसका पहला कॉमन सिविल कोड का पहला जो आर्टिकल है, पहला क्लॉज है, कहता है कि पहली पत्नी के जीवित रहते आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो। दूसरा क्लॉज कहता है कि पति की प्रॉपर्टी में बराबरी का हक पत्नी का होता है। तीसरा क्लॉज कहता है पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हक बराबरी का है। और चौथा क्लॉज कहता है कि मान लीजिए कोई महिला अगर उसको लगा कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू मैरी, मुझे शादी ही नहीं करनी है और वह अकेली रहना चाहिए, लेकिन कभी कभार अगर 35-40 की उम्र हो जाए और अगर उसे लगे कि नहीं अब अकेलापन है, बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ, तो कम से कम मैं एक आध बच्चा ही अडॉप्ट कर लूं। अगर उसे बच्चा अडॉप्ट करना है तो कानूनन शी हैज दैट राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, लेकिन उस पर यह पाबंदी नहीं लगाई जा सकेगी कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी या गोत्र की हो तो बच्चा अडॉप्ट करते समय आप उसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी गोत्र का आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ऐसे बताने की जरूरत नहीं। वह किसी भी जाति धर्म का बच्चा अडॉप्ट कर सकती है और अपनी, ज्याला आम्ही स्वकष्टार्जित प्रॉपर्टी म्हणतो, वह अपनी जमा पूंजी उस बच्चे को दे सकती है। बस चार ही बातों पर ये कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक कायदा, और कितने ही ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीर है सर, औरों की छोड़िए, लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक अंबेडकर 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 की जपमाला लगाते हैं, उनको भी पता नहीं है, जो लड़ते झगड़ते बैठते व्हाट्सएप पर कि अरे यार कॉमन सिविल कोड की जो बात थी वो बात खुद बाबा साहब ने ही रखी थी। खुद बाबा साहब चाहते थे कि कॉमन सिविल कोड आए, क्योंकि बाबा साहब ने देखा था कि सारी भारतवर्ष की महिलाओं को मजहब के नाम पर अलग अलग बांटने की बजाय सबको एक साथ रखना चाहिए, और इसलिए कॉमन सिविल कोड तो पहला जो प्रपोजल था वो बाबा साहब ने रखा था। और बाबा साहब, जिसे हम सूचक और अनुमोदक कहते हैं, तो बाबा साहब ने सजेस्ट किया और उसे और एक बार अनुमोदन देने की जो कोशिश थी वो राजकुमारी अमृता कौर ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी में की थी। ये बड़ी बात है। अब वही बाबा साहब अलग अलग कम्युनिटी के लिए क्या क्या काम करते हैं, तो इन 1943 22 और 23 फरवरी 1943 में बाबा साहब तबका उस्मानाबाद और अब का धाराशिव इस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, और धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में वह एक महारमान वतनदार परिषद लेते हैं। यह 2 दिन की परिषद थी, सोलापुर से नजदीक है, और गवर्नमेंट ने कहा था कि आप वहां पर नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने जाने की कोशिश की। तो जो रेलवे जो थी वो गांव तक नहीं पहुंचती थी, वहां से 20 किलोमीटर पहले ही रेलवे की लाइन खत्म होती थी, तो आगे कैसे जाएंगे बाबा साहब? तो बाबा साहब को ले जाने के लिए कुछ व्हीकल का प्रबंध करना पड़ेगा, किंतु उस दौरान बहुत सहज बात है कि लोगों के पास तो कोई मोटर गाड़ी कुछ नहीं था, तो एक मराठा कम्युनिटी के किसान कह रहे हैं कि अरे बाबा साहब आ रहे हैं ना, उनके लिए मेरी बैलगाड़ी दीजिए, मैं अपनी बैलगाड़ी देना चाहता हूँ बाबा साहब को। आपने देखी होगी वो कभी बीमा करेगा और इधर उधर वो बैलगाड़ी। फिर बाद में हमने देवनीकर नाम के कलेक्टर साहब थे, उन कलेक्टर साहब से बात करके, जिसमें हमने हर्षदीप जी और बहुत सारे लोगों ने मदद की, और वह हमने फिर सरकार जमा करवा दी।
अब मराठा कम्युनिटी का इंसान बाबा साहब के लिए एक बैलगाड़ी देता है, तभी एक मारवाड़ी कम्युनिटी का इंसान कह रहा है अरे बाबा साहब के रहने के लिए तब कोई गेस्ट हाउस नहीं थे, वीआईपी सूट नहीं थे, कोई ताज ओबराय तो नहीं था, तो कहाँ रुकेंगे बाबा साहब? तो एक सरकारी स्कूल में एक रूम में रुकने का प्रबंध करा दिया। तो एक मारवाड़ी कहता है कि बाबा साहब जमीन पर कैसे सो पाएंगे? बाबा साहब के लिए कुछ अच्छा प्रबंध करना चाहिए। क्या प्रबंध करेंगे? मेरे घर में ना चंदन की लकड़ी से बना हुआ पलंग है, बाबा साहब के लिए बनाइए, मेरी इच्छा है बाबा साहब के लिए। और फ्रेश माहौल होना चाहिए। वो अपनी स्पेशल अख्तरदारी बाबा साहब के लिए गिफ्ट करता है। बाबा साहब किसी एक कम्युनिटी के लीडर नहीं थे, अलग अलग कम्युनिटी बाबा साहब को क्या चाहती है इसके ये बड़े एग्जाम्पल थे। वहीं पर हर एक आता है, हर एक कास्ट कम्युनिटी का आ रहा है और बाबा साहब को अपने ओर से कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहा है। तभी एक वाल्मीकि कम्युनिटी से एक कपल आता है और वाल्मीकि कम्युनिटी का कपल मेहतर, तो वो क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब हर कोई आपके पास आ रहा है और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ओर से देने की कोशिश कर रहा है। बाबा साहब हम भी चाहते हैं कि हमारी ओर से कुछ ना कुछ दिया जाए, हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम आपके लिए कुछ करें, किंतु बाबा साहब हम काफी गरीब लोग हैं, we have not paying capacity, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन इच्छा बड़ी है कि कुछ ना कुछ दे। तो बाबा साहब हमारी यह इच्छा है कि 2 दिन के लिए अगर लोग यहाँ रुकते हैं तो लोगों की स्वच्छता का, साफ सफाई का बड़ा गहरा प्रश्न शायद निर्माण होगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं बाबा साहब ये जो लोग यहाँ जाएंगे तो महिला शौच होगा, तो हम क्या करेंगे? तो हम मियाँ बीवी दोनों पति पत्नी अब घमेलों में भर भर के, टोकरों में भर भर के ये जो मैला है ये दूर जाकर लेकर जाएंगे। कोई नेता होता तो खुश हो जाता, अरे मेरे लिए लोग मैला तो उठाने को तैयार है। लेकिन बाबा साहब गुस्सा हो रहे हैं, आग बबूला हो रहे और कह रहे हैं अरे इन कामों से छुटकारा दिलाने के लिए ही तो मेरी मूवमेंट है और तुम वही कर रहे हो ना, ये नहीं करना है। वो बाबा साहब थे जो किसी एक जाति के लिए, हर एक के लिए काम करते हैं। वही बाबा साहब, ये पीपल्स कॉलेज सिद्धार्थ कॉलेज है, इस सिद्धार्थ कॉलेज के लिए फंडिंग इकट्ठी करनी थी। तो फंडिंग के लिए बाबा साहब घूम रहे हैं और बाबा साहब फंडिंग कलेक्ट करते करते सतारा पहुंच रहे हैं। सतारा के पहले सासवड़ आता है, बाबा साहब ने सासवड़ में स्टे किया और सासवड़ में स्टे करते हैं तो वहीं पर तमाशबीन पट्टे बापूराव, उनका वहां पर एक तमाशा प्रोग्राम वहां पर लगा हुआ है और उनको पता चला कि अरे बाबा साहब इसी गांव में हैं, तो उनको लगा कि नहीं बाबा साहब को कुछ ना कुछ देना चाहिए, बाबा साहब तो कॉलेज के लिए काम करे तो हमारी ओर से कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्या देंगे? तो पूरा तमाशा का जो शो है वो शो खत्म हो गया। शो खत्म होने के बाद अपने उस शो में जो 2 महिलाएं, उन 2 महिलाओं को लेकर बाबा साहब वहां तक पहुंचते हैं और पहुंच कर पट्टे बापूराव उनको बड़ी अदब से नमस्ते करते हुए कह रहे हैं बाबा साहब हमने सुना है कि आप सिद्धार्थ कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण करवाना चाहते हैं और उसके लिए फंड की भी जरूरत है। बाबा साहब हम इतने तो बड़े लोग नहीं हैं, छोटे मोटे तमाशबीन हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम आपको कुछ न कुछ दें। कृपया ये जो धनराशि है ये आप कबूल कीजिए। सर आज की तारीख में पार्टी फंड के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं, नहीं दिया तो कभी कभी ब्लैकमेल करते हैं, ऐंठते हैं। रुपए कैसे ऐंठते हैं मैंने बताने की जरूरत नहीं है सर, आप लोगों को उसका अनुभव भी होगा कि लीडर लोग कैसे पेश आते हैं। क्या बाबा साहब ने वो धनराशि ली? बाबा साहब कह रहे हैं कि बापूराव वो धनराशि का छोड़िए, मुझे पहले ये बताइए आपके दाएं और बाएं 2 महिलाएं दिख रही है, 2 बहनें दिख रही है, पहले उनका परिचय करवा दीजिए कि ये कौन है। तो बापूराव कह रहे हैं अरे ये दिस एंड दैट कम्युनिटी की है, ये फला कम्युनिटी की है। तो बाबा साहब कहते हैं माने? तो बापूराव कहते माने मतलब क्या? अरे भाई हमारे यहाँ तमाशबीन बनने के लिए इसी कम्युनिटी से, गाने के लिए इस कम्युनिटी से, नाचने के लिए इस कम्युनिटी से, ऐसे ही आती है मैंने। तो बाबा साहब कह रहे हैं बापूराव डिप्राइव्ड क्लास को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मेरी मूवमेंट है,
डिप्राइव्ड कम्युनिटी से आई हुई इन मेरी माँ बहनों को जो खून पसीना एक करके इस तरह से यह पैसे कमाए हैं, वह पैसे मुझे मेरी मूवमेंट के लिए नहीं चाहिए। मेरी मूवमेंट इनको अपलिफ्ट करने की है, ना कि और धकेलने की है। अगर यह धनराशि खर्च करनी है तो इन्हीं बहनों के बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च। तो बाबा साहब के बारे में सोचते हुए कुछ लोग कहते हैं, अरे हमें क्या दिया, रिजर्वेशन तो तुम लोगों को ही मिला। चला कभी कभी ऐसा लगता है रिजर्वेशन का झंझट ही खत्म हो जाए, क्योंकि इतना मेरिट होने के बावजूद लोगों की आंख सिर्फ रिजर्वेशन की तरफ आती है। कितना रिजर्वेशन बचा है हमारे पास? अभी तो इतना प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है, सुना है सर कि एससीआई भी प्राइवेटाइजेशन। मुझे ये सुनकर दुख है सर, काफी दुख है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि प्राइवेटाइजेशन होने से कितना नुकसान हो सकता है और कितना कुछ हमें सहना पड़ेगा। एक वह दौर था जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की और हर एक सेक्टर को वो नेशनलाइज करने की होड़ लगाई थी। कितनी ही बैंक्स आई कि उनके कार्यकाल में उन बैंकों का उन्होंने नेशनलाइजेशन किया। अब एक दौर है सर, जाने दीजिए, आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना है, यह तय करके आई हूँ, क्योंकि 8 महीने से रोज मीडिया पे यही बातें कर रही हूँ। आज मैं भी जरा कुछ अलग बात करना चाहती हूँ। तो इतना सारा जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं वो लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि अरे भाई, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, 342, बाबा साहब gave reservation for scheduled caste and scheduled tribe, but before that 341 और 342 के पहले बाबा साहब ने 340 लिखा, जो 340 अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए लिखा, ओबीसीओ के लिए लिखा। पर ओबीसीओ को ये पता कब चले? ओबीसीओ को पता चलने की जरूरत है ना कि भाई हमारे लिए क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, हमारे लिए कितने हक दिए हैं। और इतने सारे ओबीसी, क्योंकि ओबीसीओ का भी एक अलग तरह से कुछ ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कितना ब्रेन वॉश हो सकता है तो मैं उसका मात्र एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी। अभी खारघर की दुर्घटना हो गई, तो खारघर की दुर्घटना में तकरीबन 100 लोग तो गए होंगे, लेकिन इसमें एक 30 साल का नौजवान गया। जब 30 साल का जवान बेटा जाता है तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी, कितना गहरा सदमा पहुंचा होगा, क्या दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी, कितनी जलन होगी, कलेजा जलकर खाक हो जाएगा। 30 साल के जवान बच्चे को गंवाने वाले माता पिता से जब हम मिलने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहती है? माँ कहती है, जय सतगुरु, कुछ भी मत कहिए, हमारे बच्चे को मोक्ष प्राप्त हुआ है और हमें दुख है कि यह मोक्ष प्राप्ति हमें क्यों नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि ये ब्रेन वॉशिंग गलत है? और गलत को गलत कहने की ताकत अम्बेडकराइट भली भांति रखते हैं। और if I am a true follower of Dr. Bhimrao Ambedkar, I have that guts. मुझ में वो बखूबी ताकत है कि मैं गलत को गलत कह सकती हूँ। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ओबीसीओ को यह बताने की बजाय उनको और ज्यादा बहला फुसलाकर बहकाने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा तबका एक बड़े से रिवॉल्यूशन से अलग जा रहा है। और इससे नुकसान क्या होता है पता है? इससे नुकसान यह हो रहा है कि टेक्स्ट में जब एक तरह से डार्विन की थ्योरी को बाइकआउट किया जाता है तो एक भी बेचारा बंदा बोल नहीं पाता, न पार्लियामेंट में बोलता है न असेंबली में बोलता है कि अरे भाई, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि भारत को हम विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, विजन 2020 हमने मान लिया है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम मंगल पर जाएंगे, चांद पर जाएंगे। कैसे जाएंगे आप मंगल और चांद पर? मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो डिग्रियां जहां शुरू होती है उसकी पहली नींव यह है कि डार्विन की थ्योरी क्या है समझ लेनी पड़ेगी। पर आप तो डार्विन की थ्योरी ही निकाल दे रहे हो। अगर डार्विन की थ्योरी ही पूरी निकाल दी
तो एक तरह से मान लीजिए कि एक अलग आइडियोलॉजी की आप नींव रखे जा रहे हो। मुझे उसमें भी ज्यादा नहीं जाना है, बस आपको थोड़ा बहुत समझ में आए तो छोटा मोटा, ज्यादा कुछ नहीं, अपना 1-1.5 ml का इंजेक्शन थोड़ा सा, अगर टीका लगवाने की बस कोशिश करूंगी और ज्यादा कुछ नहीं। भाई और बहनों, कभी आपने सोचा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें आई वह बातें किसी एक कास्ट कम्युनिटी के लिए नहीं आई, वह समूचे भारतवर्ष के लिए आई थी। और ये क्या चल रहा है? तो यह जो सारी जो बातें आ रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मूलतः भारतीय संविधान का निर्माण भी क्यों किया गया, इस पर जब हम बात करते हैं तो समझ में आता है कि भारतीय संविधान, क्या उसके पहले कोई कानून नहीं था इस देश में? तो उसके पहले बेशक एक कानून था इस देश में, उसके पहले अंग्रेजों का कानून था। क्या अंग्रेजों के पहले कोई कानून नहीं था? तो था। अंग्रेजों के पहले भी एक कानून था। कौन सा कानून था? तो डार्विन की थ्योरी बाइकआउट करने वाले लोगों का कानून था। जिन लोगों को डार्विन से डर लगता है, उसकी थ्योरी से डर लगता है, ऐसे लोगों ने अपना एक कानून बनाए रखा हुआ था, जो कानून डिस्क्रिमिनेशन पर निर्भर था। वही डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए एक संविधान आता है, और संविधान में जो चीजें रखी जाती है उन चीजों में खासकर 5 शब्द आते हैं। संविधान का जो प्रियम्बल में जो आपने हमें दिया, इस प्रियम्बल में 3 पार्ट आते हैं, जिसमें पहला पार्ट है कि कौन है इस संविधान का, इस देश का निर्माता, या कौन है, किसने इस देश का निर्माण किया। आपको हम बतला, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, लेकिन कोशिश है कि वो जो बाहर से सुन रहे हैं, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से सुन रहे हैं, उनको भी यह पता चले कि जब प्रियम्बल लिखा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था और सारी कमेटी इकट्ठे बैठी थी, तो अलग अलग धर्म के लोग प्रतिनिधि वहां बैठे थे और बोल रहे थे कि प्रियम्बल की शुरुआत कैसे की जाए। तो सिख कम्युनिटी के लोग आए और वो कहने लगे, अरे शुरू कर दो ना यार, शुरू कर दो, वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह। तो बोले नहीं जमेगी बात, अगर सिखों की तरह से शुरू करेंगे तो हिंदू कैसे मानेंगे। तो बोले चलो, हिंदू प्रतिनिधि बोलने लगे, हाँ मत सर्वसाक्षी ईश्वर वाला प्रमाण मानो, सर्वसाक्षी ईश्वर को साक्षी मानते हुए शुरुआत कर लीजिए। बोले नहीं, अगर आपने ऐसे शुरुआत की तो मुसलमान थोड़ी मानेंगे। तो मुसलमान बोल रहे अच्छा अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के शुरू करते हैं, नहीं चलेगी बात। अब तब तो बुद्धिज्म नहीं था, बुद्धिज्म 1956 को इधर आ गया। तो हर एक अपने अपने धर्म के हिसाब से बात कर रहा है। इकलौते बाबा साहब थे और बाबा साहब के साथ थे नेहरू जी। दोनों को यह क्रेडिट चाहता है और कहते हैं कि शुरुआत क्या होनी चाहिए प्रियम्बल की। तो इस देश का संविधान ना किसी गॉड ने, ना किसी खुदा ने, ना किसी प्रेषित ने, ना किसी प्रेषित के पुत्र ने, किसी ने नहीं किया है। इस देश के संविधान का निर्माण इस देश के लोगों ने किया है। तो शुरुआत क्या होनी चाहिए? वी द पीपल ऑफ कंट्री, हम भारत के लोग, हमारे प्रति आम्ही भारताचे लोक आमच्यासाठी हे संविधान तैयार करत आहोत, आम्ही भारताचे लोग। क्यों ऐसे कहा गया? क्योंकि सोच यह थी उसके पीछे कि भाई हिंदुओं के लिए तो भगवत गीता है, मुसलमानों के लिए तो कुरान शरीफ है, बौद्धों के लिए त्रिपिटक है, क्रिश्चियनों के लिए बाइबल है, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन समूचे भारत के लोगों के लिए कौन सी किताब होगी? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। तो पहला हिस्सा जो आ गया तो वी द पीपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा कि कैसा होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन? क्या किसी एक धर्म के बारे में सोचेगा? तो नहीं सोचेगा भाई, एक धर्म के बारे में नहीं सोचेगा। तो कहते हैं 5 शब्द आ गए, साथ लोग, सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य को मानने वाला। सार्वभौम कहा गया कि हम सार्वभौम हैं, हम पर किसी तरह की कोई हुकूमत नहीं है, हम ही सुपीरियर है। इससे पहले हम पर ब्रिटिश की हुकूमत थी, लेकिन अब किसी की हुकूमत नहीं है, हम स्वतंत्र है, एक तरह से सार्वभौम है। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, यानी कि कैसे? धर्मनिरपेक्ष का कतई ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता।
सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन पथनिरपेक्ष नहीं हो सकता, किंतु फिर भी राजनाथ सिंह जी के रहते यह बहुत ही गलत तरीके का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, जो सरासर गलत है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह था कि धर्म नाम की जो भी आपकी चीज है वह चार दीवारी के अंदर रहे, चार दीवारी के बाहर नहीं। आप प्रार्थना करो, नमाज करो, वंदना करो, जो करना है करो, लेकिन आपकी चार दीवारी के अंदर करो, चार दीवारी के बाहर नहीं। अगर यह बात समझ में आती ना, और इस पर अगर हमारे सारे सियासी लोग काम करते, तो कोई हनुमान चालीसा के लिए हट करके यहाँ नहीं बैठता। बड़ी दिक्कत है। चलो मैं उसमें भी नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा अलग हूँ, थोड़ा आगे जाती हूँ। अब ये सार्वभौम समाजवाद, समाजवाद क्या था? तो कहने लगे कि एक तरफ तो बहुत क्या पूंजीवादी अमेरिका है, दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म लिए हुए रशिया है, तो हम दोनों में भी नहीं जाएंगे, हम समाजवाद लेकर जाएंगे। यानी कि हम पार्टली प्राइवेटाइजेशन, पार्टली हम नेशनलाइजेशन, हम कुछ गवर्नमेंट सेक्टर रखेंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर रखेंगे, कुछ दोनों को मिलाकर सेक्टर रखेंगे, इस तरह से हम समाजवाद बना के रखेंगे, ऐसे कहा गया। फिर कहा गया कि लोकतंत्र होगा, और फिर कहा गया कि यहाँ गणतंत्र होगा। गणतंत्र तो बहुत ही बढ़िया, गणतंत्र के मायने होते हैं कि राजा राजा के पेट से नहीं, और राजा चुनाव पेटी से जन्म लेना चाहिए। ये 5 बातें बहुत ही पुख्ता तरीके से यहाँ रखी गई, लेकिन क्या यह 5 बातें आज की तारीख में प्रैक्टिस में है? इसमें से कुछ भी? तो इसमें से क्या प्रैक्टिस में रह गया? धर्मनिरपेक्ष की तो बात ही नहीं रही। धर्म नाम की चीज अरे चार दीवारी के अंदर रखो तो कोई रखने को तैयार नहीं है। लेकिन जिन्होंने हमें बार बार कहा जरा भी हम कुछ भी पूछे, सर यह गलत नहीं लगता क्या आपको भी या आप लोगों को कि जब हम पूछते हैं अरे यार अनएम्प्लॉयमेंट का तो बहुत रेट बढ़ गया है, तो आगे से जवाब देते हैं अरे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या पूछ रहा है, हिंदू खतरे में, चुप बैठ। हम पूछते हैं अरे महंगाई बढ़ रही है, तो वो कहता है अरे देशद्रोही हो क्या, उधर देखो पाकिस्तान हमला कर रहा है। हम बोलते हैं अरे महिला सुरक्षा का क्या, तो वो बोलते अरे छोड़ो छोड़ो मत देखो। जिन लोगों ने इस तरह से धर्म की राजनीति की, क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि धर्म की राजनीति को ही एजेंडा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो कहती है कि हम यह हिंदू राष्ट्र होगा, जो कहते हैं, मैं बड़ी गंभीरता से रख रही हूँ, जो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या वो अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी की बजाय हिंदुस्तान जनता पार्टी रखते हैं? तो ऐसे नहीं है, वो तो उसका नाम तो भारतीय जनता पार्टी ही रखते हैं। यानी कि धर्म की राजनीति बस यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए होती है। हम बार बार कहते हैं कि अरे हमको बताने की क्या जरूरत है कि हम इस देश के वतन परस्त है कि नहीं, इस वतन की मिट्टी से हमें प्यार है कि नहीं, वो समझता नहीं है कोई। खैर छोड़िए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, मैं जरा लास्ट में आती हूँ। संविधान में कहा गया था कि हम क्या करेंगे, तो हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दर्जा व संधि की समानता क्या मिलती है? क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हर लोगों को? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली तो लोग अपना मेरिट साबित कर सकते हैं। काफी दिनों के बाद एक इक्वल अपॉर्चुनिटी पिछले 8 महीने में हमने पाई है, यह एक तरह से अपने आप में बड़ी बात है। पर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? अपॉर्चुनिटी मिली तो हम प्रूव करेंगे, पर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। इस ख्याल से मुझे मेरी पार्टी की एक अलग बात लगती है कि जितनी भी भारत में आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां हैं, उनने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लाए थे, जैसे कि हल्ला बोल यात्रा, परिवार संवाद यात्रा, रथ यात्रा, कमंडलू यात्रा, मंडल यात्रा, सत्ता संपन्न यात्रा, बहुत सारी यात्रा, संघर्ष यात्रा, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जितनी भी यात्राएं वो लेकर आए, उस हर एक यात्रा की जो लीडरशिप थी वो पुरुष नेताओं ने थी। एकमात्र शिवसेना थी कि जिसने महाप्रबोधन यात्रा की लीड करने के लिए एक महिला को चुना, ये अपने आप में बियॉन्ड द कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, जात, धर्म और लिंग के परे जाकर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात इस संविधान में कही गई थी और कहा कि हम समता मूलक समाज लाएंगे। समता मूलक समाज आया है अब भी,
और क्यों नहीं आया है, और लाने की कोशिश अगर डार्विन की थ्योरी को बायकॉट करने वाले नहीं ला रहे हैं तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती जो हम बाबा साहब के फॉलोअर खुद को कहलाते हैं? क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? तो हम उसके लिए कुछ करते भी नहीं है। अब जब एक परसेप्शन आ रहा है, मैं ज्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगी, मैं बस मेरी बात खत्म करने जा रही हूँ। एक और परसेप्शन अब आ रहा है पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से, खासकर मेरे स्पीचेस में पिछले 8-10 महीने से तो बहुत ज्यादा आ रहा है। पिछले 2 साल से मैं ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ हर एक मंच से, ना सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरे भारत भर से, और कभी कभी तो इंटरनेशनल लेवल पर से भी मैं यह बात रखने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए भारत का संविधान खतरे में है और यह संविधान बचाने की हम सबको कोशिश करनी है। अगर आज हम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव मना रहे हैं, और इफ यू वांट टू ट्रिब्यूट यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस मूवमेंट। अगर आप ट्रिब्यूट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट किस चीज के लिए करना है? तो आपको संविधान बचाने की इस मूवमेंट में करना है। कुछ लोग कहेंगे अरे ताई इसमें संविधान खतरे की बात कहाँ से आई? जिस संविधान ने हमें पढ़ने का हक दिया, लिखने का हक दिया, बोलने का हक दिया, हमारी जो भी पूंजी है वो बनाने का हक दिया, हमारी रोजी रोटी चुनने का हक दिया, हम क्या बोले, हम क्या खाए, हम क्या पिए, ये सारे हक संविधान ने लिए, लेकिन हम क्या बोले, हम क्या खाए, हम क्या पिए, हम क्या पहने, इस पर पाबंदियां लग रही है धर्म के नाम पर। तो एक तरह से यह डिक्टेटरशिप अगर बढ़ रही है तो इसको कैसे रोके? तो इसको रोकने के लिए संविधान पहले बचाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे संविधान को कहाँ खतरा है, तो मैं बस उतनी ही बात बताऊंगी और बात खत्म करूंगी। देखिए, संविधान लिखने वालों ने कहा था कि संविधान को अगर आपको कभी ऐसे लगे कि इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो वी आर गिविंग यू मेथड्स, हम आपको अमेंडमेंट की कुछ मेथड दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 देयर आर 3 मेथड्स A, B and C। 368A क्या कहता है? ये सिंपल मेजॉरिटी वाला है कि मान लीजिए कि उधर पार्लियामेंट में 543 लोग काम कर रहे हैं, 543 सांसद है, 543 सांसद में से बस 100 ही सांसद होंगे, और अगर 51 सांसदों ने कहा कि यह बात होनी चाहिए तो बात हो जाएगी, उसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी लॉ। ये सिंपल मेजॉरिटी किस चीज के लिए होती है? किसी प्रदेश का नाम बदलना, शहर का नाम बदलना, किसी गांव का नाम बदलना, सिंपल मेजॉरिटी है। एक दूसरी आती है 368B जिसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ये जब 2 राज्यों का, 2 नदियों का, 2 डैम का अगर कोई चीज हो, जैसे कि सीमा प्रश्न है, बेलगाम का सवाल है, कुछ चीजें हैं, इसमें 368B करना पड़ता है, यानी कि 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसमें से कम 272 लोगों ने हाँ कहनी चाहिए, तब यह अमेंडमेंट हो सकता है। और तीसरा जो फ्रेमवर्क है उसे ही अगर ब्रेक करना है तो 368C करना पड़ता है, यानी कि ऊपर 272 सांसदों ने हाँ करना चाहिए और नीचे यानी कि राज्यसभा स्टेट असेंबली के आधे से ज्यादा असेंबलीज ने, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, गोवा, बिहार, यूपी, एमपी, ये जो है स्टेट अलग अलग, तो पूरे स्टेट में से कम आधे से ज्यादा स्टेट ने हाँ करनी चाहिए फ्रेमवर्क अगर बदलना है तो फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फ्रेमवर्क ही पता नहीं है। तो फ्रेमवर्क कहा गया है नानी पालकी वाला, बाबा साहब खुद लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स है और उस ऑर्डर्स के मुताबिक कहा गया है कि फ्रेमवर्क 4 हिस्सों में बंटती है। एक, इस देश का नाम बदलने का हक किसी भी नहीं है। इस देश का अगर नाम बदलना है आपको तो ऊपर 272 सांसद और नीचे आधे से ज्यादा स्टेट असेंबली ने हाँ करना चाहिए। 2, फंडामेंटल राइट में बदलाव करने का हक किसे नहीं है, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, यानी कि एट्रोसिटी एक्ट हो, बोलने का हक हो, लिखने का हक हो, सभा सम्मेलन लेने का हक हो, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। करना है तो ऊपर 272 MP, नीचे आधे से ज्यादा सांसद होने चाहिए। तीसरा कहा गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जैसे कि आपका शिपिंग बोर्ड है अलग है, जुडिशियरी अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग है, अलग ही रहेंगी, सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी।
सत्ता डिसेंट्रलाइज की जाएगी। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो फिर आपको 368C, ऊपर 272, नीचे आधे से ज्यादा स्टेट असेंबली, और चौथा हिस्सा कहता है हम जो कह रहे हैं इसे ही फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भाई और बहनों, अब आप सोचिए कि खतरा कहाँ है। तो आज की तारीख में पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास सिर्फ 272 नहीं, रूलिंग पार्टी के पास 300 से अधिक सांसद है। एक पायदान तो हासिल कर लिया। स्टेट असेंबली की जो मेजॉरिटी है उनके पास की कभी नहीं था हिस्ट्री में, लेकिन राज्यसभा में उनके पास 100 से अधिक सांसद है। यानी कि वो जब चाहे इस देश का फ्रेमवर्क तोड़ मरोड़ सकते हैं। अब इस फ्रेमवर्क को अगर आपको बचाना होगा तो आपको चाहिए कि स्टेट असेंबली की जो मेजॉरिटी है वो तोड़नी पड़ेगी। यानी कि एक एक स्टेट में वो मेजॉरिटी कम करनी पड़ेगी। और वही करने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, अरे सुषमा ताई तुम्ही तर सोशल मुवमेंट मध्ये होता, इकडे कशा काय गेलात तुम्ही? माझी अडचण अशी आहे दादा की माझा विचार सांगण्यासाठी मला एका मोठ्या प्लॅटफॉर्मची गरज आहे। जर मला माझ्या बापाने लिहिलेला कायदा वाचवायचा असेल तर एका मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर जाऊन सांगावं लागेल, आणि तो मोठा प्लॅटफॉर्म जर मेन स्ट्रीमची पार्टी मला देत असेल तर तिथे जाऊन मी तो बोलला पाहिजे। फक्त आणि फक्त एवढ्यासाठीचा हा अट्टहास आहे। बाकी आप समझदार लोग हो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैंने बहुत इनबॉक्स रहकर बात करने की कोशिश की है। क्या यह संविधान बचाने के लिए आप तैयार हैं? आप सोचिए, डार्विन को बाइकआउट करने वाले लोगों को बाइकआउट करना है कि उन्हीं का साथ देकर फिर एक बार बाबा साहब का संविधान छोड़कर उसके पहले का मनोवादी संविधान लाना है? इस पर आप सोच विचार कीजिए। डिसीजन इज योर्स। मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर कोई शक नहीं कर रही हूँ, मुझे कतई संदेह नहीं है आपके ज्ञान पर। मैं समझती हूँ कि बुद्ध कहते हैं ऐ ही बस्ती को आओ जानो फिर मानो, पहले आइए समझ लीजिए। अगर आपको यह सही लगा तो इसे मान लीजिए, आपको सही लगता है तो मान लीजिए। जितना मुझे लगा वो मैंने रख दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं प्राइवेटाइजेशन पर ना बोलूं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आज की चलती राजनीति पर ना बोलूं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मजहबी दंगों फसाद की बात यहाँ ना करूं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जितना हो सके उतना बहुत ही स्वीट और मीठा मीठा हूँ। तो मैंने बहुत इतना मीठा मैं कभी नहीं बोलती हूँ सर, लेकिन आपके डर की वजह से बोल रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने प्राइवेटाइजेशन की बात निकाली, आप मोबाइल लेकर बैठ गए सर, तो मेरे लिए वो सिग्नल था कि नाउ ये एक तरह से सिग्नल है कि नो 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 प्लीज स्टॉप। सो मैंने बहुत एहतियात बरत के अपनी बात रखी है, लेकिन फिर भी किसी की भी भावनाएं आहत करना की मेरी कोई मंशा नहीं है। किंतु फिर भी अगर किसी को भी बुरा लगा हो, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, किसी भी तरह से कोई आहत हुआ हो, तो उन सभी महानुभावों की मैं बिल्कुल ही माफी नहीं मांगूंगी। क्योंकि सर अगर मैंने माफी मांग ली तो पहली सारी बातें बेमानी हो जाएगी। आप नए सुन रहे से आपको बता रही सर। बाकी इन लोगों को पता है कि मैं सही में माफी कभी नहीं मांगती हूँ। मैं अपनी बात पर अटल हूँ, और अटल यानी मैं वाजपेयी वाले अटल नहीं, मैं अपनी बात पर बड़ी अटल हूँ। अपनी बात बड़े पुख्ता तरीके से रखने के लिए बड़ी जानी पहचानी हूँ। लेकिन इतनी पुख्ता बात आपने इतनी संजीदगी से सुनी, यह भी मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। आप सभी का आभार चाहूंगी और यही अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय भीम, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, ma'am, for your invigorating and motivational speech and bringing us so many new facets of Dr. B.R. Ambedkar's life. I would now like to move on to the next stage of our program, which is a cultural program. We all know that Dr. B.R. Ambedkar was one of the most remarkable personalities in the Indian history. A visionary leader, a social reformer, and a true champion of the oppressed. All this and a glimpse from his life are captured in the performances
of We the People, a group by Jolly Morin and Seema Patel, which is our next part of the